Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Dawar Zahid and welcome to the second video of control and coordination or nervous system wala chapter. ठीक है, in this chapter we will be specifically talking about nerve impulses and we'll be moving on to talking about resting potentials and how they are specifically established. ठीक है, and so this chapter this topic is going to be divided into two videos. So this is going to be the first video, just we'll be covering resting potentials, how they're established. ठीक है, and just some basic things that I want to talk to you guys about. और उसके बाद in the next video we'll be talking to you guys about further action potentials and stuff. So let's get started. Okay guys, so first things first, this video and the next video, this is going to be super easy for A-level students provided that you studied properly in your A-levels. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ को ना ये this is like one of those things that gives us an advantage over FSC students. ठीक है, but still I would strongly suggest you guys to at least watch this video. Speed increase करके देख लो, but still watch this video. Because like I have personally seen some students उन्होंने A levels के लिए पढ़ा हुआ था लेकिन उनको overall concept उनका इतना अच्छा clear नहीं होता. ठीक है, because this chapter is a bit tricky. ठीक है, so I want to start off with the first thing, which is going to be nerve impulses की definition. What is a nerve impulse, guys? First of all, nerve impulse is a self-propagating wave of electrical disturbance. ठीक है, of electrical disturbance. ठीक है, and guys, this is specifically going to be traveling, nerve impulses are specifically going to be traveling at the surface of axon membrane. And guys, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा axon membrane को मैं क्या कहता हूँ, I call it a exolemma. Okay, we did this all the way here. This is going to be the exolemma. तो if अगर आपके MD के आर्ट के इन एग्जाम्स में उन्होंने exolemma लिखा हो, ठीक है, don't get confused. Okay, it's the same thing. Alright, so guys, nerve impulse ये होता है. अच्छा, अब आप लोगों ने ना बात, and so this is the nerve impulse, it's self-propagating. Okay, I want you guys to close your eyes and just imagine some dominoes. Okay, dominoes का सबको पता है ना क्या होते हैं. I'm not talking about the pizza place, I'm talking about like actual dominoes. ठीक है, so dominoes are sort of like this, right? Okay guys, और हमने यही analogy से सारी चीज़ समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, okay, so what happens with dominoes is कि एक जब गिरता है तो they all fall down. Okay, ये गिरता है, it touches this one, this touches this one, this touches this one, and they all fall down. That is exactly how nerve impulses travel. Okay guys, okay, there's a stimuli from here which makes this one fall, जो इसको hit करता है, जो इसको hit करता है, जो इसको hit करता है, and it's self-propagating. Okay, that is what a nerve impulse is. This is the first example. ये dominoes वाले example को हम लोग बहुत ज़्यादा build up करेंगे. ठीक है, like I teach this entire sub chapter by this example. ठीक है, so सबसे पहले dominoes हम लोगों ने अब imagine for the first time, we've imagined them. अब आगे चल के और देखेंगे. ठीक है, अच्छा, now I want to talk about the resting potential. Okay guys, so talking about resting potential, so सबसे पहले दो तीन चीज़ें. The first thing is कि this is artificially maintained, कि हम लोग इसको energy invest करके maintain करते हैं. This is an artificially maintained difference. This is delta, which stands for difference in electric potentials across the membrane. Okay, this is what we have. Guys, we say कि it is polarized. Polarized का मतलब क्या होता है? Difference है. ठीक है, it's a polarized society. What does that mean? It's a society with a lot of different views in it. ठीक है, so we say कि जी this is a polarized neuron. ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा हो polarized, it means resting potential established. Alright, okay. And the third thing is guys, यहाँ पे हम लोग ना energy invest कर रहे होते हैं. ठीक है, ATP is invested to maintain the resting potential. वो कैसे होते हैं? We'll look at that. Invested. ठीक है, let's just write invested. Guys, I have a question. मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो मेरे ब्रेन सेल्स थे, what I did was कि मैंने ऑक्सीजन कट कर दी. ठीक है, कैन समवन टेल मी कि इज माई रेस्टिंग पोटेंशियल गोइंग टू बी लाइक रेस्टिंग पोटेंशियल ख़राब होगा या मेरा जो अपना the second one, the action potential, is that going to be ruined? The resting potential is going to be ruined because now ये artificially maintained जो एक हमारा difference है ये maintain नहीं हो सकता क्योंकि अब मेरे पास ATP बन ही नहीं सक रहे. ठीक है, तो just keep that thing in mind and we'll talk more about this in future videos. Okay, so ये हम लोगों ने बात कर ली and in this state we are not, there's no impulse being transmitted. ठीक है, let's come back to our dominoes example.
मैंने क्या किया गाइस, मैंने ये किया है कि मेरे पास ना एक पीस पड़ा हुआ था इस तरह से, ज़मीन पे पड़ा हुआ था, मैंने एनर्जी लगाई है और मैंने इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, ठीक है। सो अगर मैं इस वाले पीस को हटाऊँ जिसको मैंने खड़ा किया था, और वो अब इट्स बेसिकली लाइक दिस, ये देखो, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है, कि पहले नीचे गिरा हुआ था, मैंने एनर्जी लगा के, नीचे था, मैंने एनर्जी लगा के उसे ऊपर खड़ा कर दिया, और मैंने उसे मैं आई एम बेसिकली होल्डिंग इट, ठीक है, वरना वो गिर जाएगा। अगर मैं इसे छोड़ूंगा ये उठा जाके इधर गिरेगा, फिर इधर गिरेगा, फिर इधर गिरेगा। So I'm sort of like holding it in my hands, ठीक है, I'm investing energy to maintain it, okay, all right। अच्छा, इसकी जो रेंज होती है गाइस, this is going to be, the range of it is going to be 50 to 90 millivolts, is going to be vary from individual to individual, ठीक है, बट हमारे पास जो एक वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं that's going to be 65 millivolts, and this can be plus minus up to 3 मिलीवोट्स के। कुछ जगहों पर उन्होंने इवन 67 68 लिखी होगी, कुछ में उन्होंने थोड़ी सी कम भी लिखी हुई होगी। आई वुड सजेस्ट अभी के लिए, सो नाउ यू गाइस आर प्रॉब्ली क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऑन द 21 जुलाई, ठीक है, तो उसके लिए दिस वैल्यू इज़ इनफ, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर MD कैट, तो देन जस्ट ओपन योर प्रोवेंशियल बुक, और इफ़ यू फ्रॉम फेडरल, अगर आप फेडरली दे रहे हैं MD कैट, जस्ट ओपन योर फेडरल FSC बायोलॉजी बुक, और वहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हो आपने उसको याद कर लेना, बिकॉज दे विल फॉलो दैट वैल्यू। ओके गाइस, अब ना आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट वन मोर थिंग, ठीक है। अच्छा, रेस्टिंग पोटेंशियल हमने देख लिया कि होता क्या है, ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में ना, और लेट्स जस्ट टॉक अ बिट मोर अबाउट दिस, ठीक है। ओके गाइस, बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन, जस्ट वांटेड टू क्रिएट वन स्मॉल थिंग। दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द इनसाइड, दिस इज द आउटसाइड। व्हाट वुड पोलराइज्ड बी लाइक? पोलराइज्ड का ये मतलब है कि आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव देन द इनसाइड। वो कैसे है, कौन से आयंस की बात हो रही है, वी लुक एट ऑल ऑफ दैट, डोंट वरी, ठीक है, बट दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू बी हैविंग ओवर हियर, ओके। दैट इज व्हाई वी से इट इज पोलराइज्ड, okay, there's a difference, the concentration here is different than the concentration here. Guys, a quick question, if I was to, let's say, stop investing this ATP, stop in, maintaining this barrier, ठीक है, and maintaining this, gradient, will the movement of neurons be like this, or will it be like this? Will it be from outside to inside or inside to outside? It's going to be outside to inside. Anyways, ये खैर इसमें हम और डिटेल में जाएंगे, इतना सिंपल नहीं है ये। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से जो बात करनी है, that is going to be that how do we essentially maintain or establish this resting potential, ठीक है। So how is the resting potential, how is resting potential maintained, ठीक है, maintained/control, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद अभी ना समझ आए, बट गिव मी अ मिनट, एक दफ़ा प्लीज़ लुक एट दिस एंड देन वी लुक एट हाउ इट इज़ एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड। अभी हम बात करें मेंटेनेंस की। आई नो इट साउंड्स अ बिट लाइक स्टूपिड कि पहले वी टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस, देन वी टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, बट आई फील लाइक मेंटेनेंस की बात करके ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हाउ इज़ इट मेंटेन्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मेंटेन कह दो या कंट्रोल्ड कह दो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई थिंक लेट्स गो विद द वर्ड कंट्रोल्ड। आई एम यूजिंग एज सिंपल टर्मिनोलॉजीज एज आई कैन, ताकि आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझ आता जाए। हाउ इज़ इट कंट्रोल्ड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, वी हैव द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। माई क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल इज कि जो मेरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इज दिस पोलर, इज दिस नॉन पोलर? दिस इज नॉन पोलर। गाइज, अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि जो मेरे आयंस होते हैं, आर माई आयंस गोइंग टू बी पोलर, आर दे गोइंग टू बी नॉन पोलर? दे आर पोलर, ठीक है, पोलर होते हैं। Guys, can a non-polar thing allow the movement of a polar thing? Nope. एक नॉन पोलर चीज़ अपने अंदर में से एक पोलर चीज़ को नहीं गुजरने देती, ठीक है। तो दीज आयंस दे कैन नॉट बी क्रॉसिंग द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब वो अपनी मर्जी से आना जाना नहीं कर सकते। वो जाएंगे तो वो सिर्फ हमारे इस्टेब्लिश चैनल्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गाइज हमारे पास होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है, जिनके जो डिपेंड कर रहे होते हैं वोल्टेज के ऊपर। सो वोल्टेज, जस्ट अ सेकेंड, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, दीज आर द फर्स्ट थिंग, ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। द सेकंड थिंग, सॉरी, देन वी हैव दीज लीक चैनल्स, एंड गाइज लीक चैनल्स फॉर द मोस्ट पार्ट आर गोइंग टू बी ऑलवेज ओपन, ठीक है, ऑलवेज ओपन, और ये स्पेसिफिक आयंस के लिए होते हैं, ठीक है। एंड देन गाइज वी हैव द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जैसे हम लोग सोडियम पोटेशियम ATP पंप के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है।
And guys, what is this going to be doing? This is going to be pumping sodium in and potassium out. Okay, please remember this thing. Okay, now that we have talked about this कि अच्छा सोडियम बाहर जा रहा है, थोड़ा सा आगे चलते हैं. Okay guys, so sodium is going to be moving outside. Okay, sodium goes outside, potassium comes inside. मैंने कैसे याद किया था? Sorry, you are out. Please come in. Okay, potassium, P for potassium, P for please come in. Okay, so sodium is out, potassium is sodium is out and potassium is in. Okay guys, we've talked about this. अच्छा, अब हम लोगों ने जो आगे जाके थोड़ी सी और बात करनी है वो ये करनी है कि regarding the regarding the okay, we've talked about how it is controlled, सारी बातें कर ली. अच्छा, now let's talk about how we are going to be actually achieving this. ठीक है कि अब हम लोग how do we establish the resting potential? Okay, let's just come over here. How is the resting potential established? All right guys, please stay with me. This might seem a bit complicated to you guys, लेकिन हम आराम से करेंगे. ठीक है. अच्छा, first of all guys, हमारे पास होता क्या है कि जो हमारा पंप होता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज गोइंग टू बी पंपिंग सोडियम आउट. ठीक है, सोडियम को वो बाहर निकालेगा एंड इट इज गोइंग टू बी साइमल्टेनियसली पंपिंग पोटेशियम इन. प्लीज कम इन. ओके, पोटेशियम इन. गाइज, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. सोडियम का क्या चार्ज होता है? सोडियम इज +1. पोटेशियम का क्या चार्ज होता है? +1. ठीक है, Na प्लस एंड K प्लस, राइट? ओके, सो in order for me to establish a different a polarized gradient, essentially a gradient, ठीक है, I need different numbers to be kicked out, right? So ये मैं निकालूंगा 3 out, ठीक है, and 2 in. ओके, जब मैं 3 बाहर निकाल रहा हूँ और मैं 2 इनसाइड निकाल रहा हूँ, गाइज अभी मुझे बता दो what is going to be the net effect of this? The outside is going to be more positive. Okay, the outside is more positive. This is what we are. Start से हम लोगों ने achieve ही ये चीज़ करनी थी. ठीक है कि for 3 sodium ions that move out, 2 potassium ions move in. Okay, guys, अब मुझे एक चीज़ छोटी सी बताओ. I'll write it over here. Now that I have more sodium outside than inside, एक तो ये, and I have more potassium inside then outside, guys, which chemical मैंने खुद ही बोल दिया, which gradient is being established? It's going to be a chemical gradient. Okay, अभी हम लोगों ने इतना नहीं किया कि एक electrical gradient, even though charges are obviously involved, these particles are charged, these are ions. ठीक है, ये हम ions की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक chemical gradient establish हुआ है. अभी हम लोगों ने इतने ज़्यादा भी charge का रोल नहीं आया. So we have established a chemical gradient. Okay, a chemical gradient is established. And guys, जब भी ये chemical gradient establish होता है, we don't like it. We don't want a chemical gradient. ठीक है, as in your cells, they do not like the chemical gradient. ठीक है. अच्छा, now that we have a chemical gradient, I have a question from you guys. मुझे एक चीज़ आप जल्दी से बताएं कि जो मेरा सोडियम है, where does it want to go? The sodium wants to go. Sodium essentially wants to come in because it has been kicked out. So sodium wants to, one second, come in, and potassium wants to go out. ठीक है, this is what they want to do. ठीक है. Okay guys, अब लेकिन हमने क्या करना है? We want to still control it, and to control it, what do we do? कि हम लोगों के पास ना जो पोटेशियम होता है, we have, this is important, okay, more leak channels. Leak channels जो होते हैं, I'll write it again. Leak channels are essentially working on the principle of diffusion. ठीक है, ये बस लीकेज, जैसे लीकेज होती है ना कि there is no energy really invested in this, ये उस तरह के होते हैं. ठीक है. Okay guys, अब मेरे पास ना there is more leak channels, more leak channels specifically for potassium.
guys, what happens? Potassium wants to go out. Potassium wants to go out. क्या नेट इफेक्ट हुआ? क्या नेट इफेक्ट हुआ? अब मेरे पास पोटेशियम भी बाहर जाना शुरू हो गई है, ठीक है, सोडियम भी बाहर जाना शुरू हो गई है, ठीक है गाइस. व्हाट विल हैपन? अब मेरे पास अपना इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. नाउ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, अगर हम ओवरव्यू देखें, सोडियम अब a lot inside, पोटेशियम अब हमारे पास a lot outside. Guys, what will happen? We will have a electrical gradient now. अब हमारा electrical gradient बनना शुरू हो गया, ठीक है. electrical gradient देखो, हमने पैसे लगाकर, एनर्जी लगाकर पोटेशियम को पहले अंदर कर दिया. Then potassium was like, oh, I want to go out. We are like, okay, good, do it, go out. Why? Because we wanted an electrical gradient, and this going out, it meant that the outside would become more positive. Okay, so that is what we want. अच्छा, अब हमारा guys electrical gradient establish होना शुरू हो गया, ठीक है. Okay, now what happens is कि after a certain amount of time or after a certain amount of movement, there is another change. And what is this change going to be? After a certain amount of time, outside becomes, the gradient established होना शुरू हो गया, outside is now more positive. Okay, guys, I have a question. This ion is positive, right? Will it want to go outside where it is positive now? No. So potassium after a certain amount of time decides, okay, I don't want to go, ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता, अब आई एम हैप्पी हेयर, ठीक है. आई डोंट वांट टू गो, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई एम हैप्पी इनसाइड, ठीक है. होता क्या, द केमिकल द मूवमेंट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन अ बिट, ठीक है. मूवमेंट स्लोज डाउन, एंड गाइस व्हेन द मूवमेंट इज स्लोइंग डाउन, अब हमारे आयंस इतने नहीं मूव कर रहे, व्हाट विल हैपन? द ग्रेडियंट is slowly becoming more stable. The gradient is slowly becoming more stable. Okay, अब ना मैंने दो तीन छोटी छोटी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करनी है, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. Okay guys, what are going to be these organic components? तो guys, पहली मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट आता है वो ये आता है कि जो मेरा साइटोप्लाज्म होगा ना, दैट विल बी नेगेटिव. सो आई विल हैव अ नेगेटिव साइटोप्लाज्म. अच्छा, ये नेगेटिव साइटोप्लाज्म रोल क्या प्ले करेगा? अभी तक देखो, यहाँ तक वी हैव एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दैट्स एस्टैब्लिश्ड, अ केमिकल ग्रेडियंट दैट्स एस्टैब्लिश्ड. द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, व्हाट दीज डू इज कि इनको आप इस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ये हेल्प करते हैं हमारे ग्रेडियंट को और स्टेबल करने में. दे डोंट हेल्प अस रियली इन एस्टैब्लिशिंग द ग्रेडियंट, दे हेल्प अस मोर इन मेंटेनिंग एंड मेकिंग द ग्रेडियंट मोर स्टेबल, एंड वी वांट दैट, ठीक है. अगर ग्रेडियंट ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो एनीथिंग कैन सेट इट ऑफ, राइट. ओके, सो गाइज, हमारे पास होता क्या है, नेगेटिव साइटोप्लाज्म होगा. दिस नेगेटिव साइटोप्लाज्म इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी अट्रैक्टिंग सोडियम आयंस. लाइक सोडियम आयंस कहेंगे, चलो यार, देयर इज सम नेगेटिव स्टफ हियर, लेट्स जस्ट थोड़ा सा चलो इनके पास हम बैठ जाते हैं. एंड ऑल्सो अब जो हमारी आउटसाइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, द आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट हैज़ बिकम वेरी पॉजिटिव, ठीक है. एंड गाइज प्लीज़ इसको ना टाइमलाइन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है. या इस टाइम पे नहीं था ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन इस टाइम पे पॉजिटिव हो गया. ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट इन अ टाइम लाइन, एंड आई विल टेल यू गाइस हाउ टू कंसोलिडेट दिस थिंग ऑन योर ओन एज वेल. मैं भी आप लोगों को वो भी समझाऊंगा, तो डोंट वरी. लेकिन अच्छा, अब नेगेटिव साइटोप्लाज्म, आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर, मोर पॉजिटिव, बोथ ऑफ दीज थिंग्स व्हाट दे डिड वाज कि इन्होंने सोडियम आयंस को स्टेबलाइज कर दिया. सोडियम आयंस डिसाइडेड कि अच्छा यार देखो, मैं अंदर बैठा हूँ, अंदर वैसे ही नेगेटिव साइटोप्लाज्म है, आई एम हैप्पी, और जो आउटसाइड है वो वैसे ही पॉजिटिव है, तो मैं क्या जाऊँ, वाई शुड आई गो एंड लाइक टॉक टू लाइक पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है. मैं खुद पॉजिटिव हूँ. ओके, अच्छा, अब गाइज एक और छोटी सी हम लोगों ने बात करनी है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट हम इसको कहते हैं कि जो हमारा एक्सॉन होता है ना, इन द एक्सॉन आई एम गोइंग टू बी हैविंग सर्टेन लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है. लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और ये ज़्यादा काम क्या कर रहे होते हैं, चार्ज प्रोटीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म.
अच्छा, इनका बात इनको ना आयंस वाले उसमें ना देखना कि अच्छा ये आयंस को अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते, डोंट थिंक ऑफ देम इन दैट रिगार्ड दैट मच, जस्ट थिंक ऑफ देम इस तरह से, गाइज व्हाट डू आई वांट एज माय फाइनल स्टेट। मेरी फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए कि मेरी आउटसाइड ज़्यादा पॉजिटिव है और मेरी इनसाइड ज़्यादा नेगेटिव है, राइट, outside positive inside negative. So these negatively charged proteins are going to be helping me in achieving this final thing. Why? Because ये negative है और ये हमारी साइटोप्लाज्म को अंदर से और negative कर रहे होते हैं. So guys, this is what we have. ये हम लोगों ने सारा establish कर लिया. Okay, what do I want you all to do? Please take a piece of paper and a pencil and try and draw this, make a timeline. कि अच्छा start में सोडियम पोटेशियम पंप काम करना शुरू हुआ, फिर लीक चैनल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, ठीक है, फिर सोडियम की मूवमेंट कैसे हुई, पोटेशियम की मूवमेंट कैसे हुई, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है. प्लीज़ डू ऑल ऑफ दिस, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ओके, वन थिंग दैट आई वांट टू राइट is कि this is going to be called a dynamic equilibrium. मतलब there is still going to be movement, but overall it's an equilibrium. ठीक है, equilibrium, L को छोड़ दो बस, कुछ नहीं होता. अच्छा, and we say कि there is a balance between chemical and electrical gradients. ठीक है, तो if they ever give you a question stem and they ask you कि you know there's some reasons जिसकी वजह से हमारे पास electrical और chemical gradient establish नहीं हो रहा, तो what is it, तो आपने कहना कि जी हमारा resting potential नहीं maintain होगा. And guys, with that we are going to be wrapping up this video. ठीक है, we talked about nerve impulses, we talked about resting potential. I hope this made sense and I hope to see you guys in the future videos. ठीक है, जिसके अंदर we are going to be talking about the action potential, which is essentially going to be a reversal of the resting potential. Okay guys, see you all in the next video inshallah. Allah Hafiz.